کریں تو ہمیں کیا سکھانے کو ملتا سیکھیں گے، کلام میں جائے کریں گے۔ کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، ان کے ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ دیا تھا، اور خدا نے مجھ سے کہا کہ تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے ڈر گئی، تو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کر دوں۔ پاکلام میں پڑھے اور اس میں جانے پر خدا اس کی برکت ہو، خدا کی خاص برکت ہو۔ خدا کے بندہ نے کلام اقدس میں 12ویں آیت کا جو حوالہ پڑھا ہے وہ کچھ یوں لکھا گیا ہے، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا، اپنا طریقہ بگاڑ لیا۔ یہ ہمارا مضمون ہے۔ کیا مضمون ہے؟ اپنا طریقہ بگاڑ لیا ہے، یہ ہمارا مضمون ہے۔ عزیزو، جب میں صبح 6 بجے اٹھا، رات کو کلام کی سٹڈی کر رہا، صبح سٹڈی کر رہا، پچھلے 2-3 دن سے اسی مضمون کو لے کر کچھ جو ہے وہ حوالہ جات دیکھ رہا تھا اور خدا کے فاضل سے مدد مانگ رہا تھا، تو خدا نے مجھے جو یہ تنگ دستی چل رہی ہے، جو مہنگائی کا عالم چل رہا ہے، اس کے بارے میں نے سوچا کہ میں کچھ بیان کروں جو خدا کا پاک مجھے سکھاتا ہے۔ ہم سب مہنگائی سے پریشان ہیں، ایسا ہی نہیں ہے؟ ایسا ملک پاکستان میں ہر انسان مہنگائی سے پریشان ہے، کیونکہ ٹو مچ مہنگائی ہو رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں تسلی بخشتا ہے، خدا کا کلام ہمیں تسلی بخشتا ہے۔ اب جب خدا یہاں فرما رہے ہیں اور خدا نے زمین پر نظر کی، کیا کی؟ نظر کی۔ خدا آسمان پر ہے اور زمین پر دیکھ رہا ہے۔ خدا نے جب لکھا گیا ہے، جب نظر کی اور دیکھا کہ وہ سب کیا ہو گئے ہیں؟ ناراض ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ ناراض ہو گئے ہیں۔ اب ان میں کوئی بھی پاک نہیں رہا، سب نجاست کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ کس کی حالت میں؟ نجاست کی حالت میں چلے گئے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ جب انسان اپنا طریقہ بگاڑتا ہے، جب انسان اپنا طریقہ بگاڑتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ مصیبت میں آتا ہے۔ اسی طرح خدا نوح کو چنتا ہے، خدا نوح کو چنتا ہے کہ نوح جو ہے اس روح زمین پر اپنی فیملی کے ساتھ اور جتنے روح زمین پر جاندار ہیں، رینگنے والے چرند پرند اور حیوانات جو سمندر کے اندر ہیں، ان کے کیا کرے؟ بچا لے۔ 2 پیر، نر اور مادہ کو کیا کرے؟ بچا لے۔ اب خدا کے ساتھ خدا کا بندہ نوح جو ہے وہ راستے کے ساتھ چلتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ راستے کے ساتھ۔ اب خدا نوح کو جو بھی بات کہتا ہے، نوح جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ پورا کرتا ہے۔
वो क्या करता है, उसको पूरा करता है, खुदा की बात को सुनता है। और इंसान जो है वो गुनाह की दलदल में चला जाता है। इंसान जो है गुनाह की दलदल में, गुनाह की जिंदगी में दाखिल होता है, दाखिल होता है। किसमें होता है? गुनाह की जिंदगी में दाखिल होता है और कलाम खुदा पर मारता है। नए अहद में मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो बड़ी खूबसूरत आयत फरमाते हैं कि गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? वो मौत है। अब खुदा ने पैदाइश में ये काम शुरू कर दिया है और खुदा जब इंसान को बना रहा है तो इंसान के लिए खुदा कुछ हो रहा है। खुदा क्या है? इंसान के लिए खुश हो रहा है। और छठे बाप में जो है वो नाराज हो गया। छठे बाप में वो नाराज हो गया। अब इंसान जो है वो गुनाह की दलदल में अपनी ख्वाहिशों में इतना बढ़ गया है, इतना धंस गया है, इतना उस गुनाह की दलदल में दाखिल हो गया है कि अब उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। अब खुदा ने अपने बंदा को कहा कि तू अपने लिए क्या कर? कश्ती तैयार कर। क्या कर? कश्ती तैयार कर और उसके अंदर क्या कर? बाहर की तरफ क्या करना है? एक राल लगाना है। राल का मतलब है बॉडी वॉल। जैसा कि ये यहाँ पे आप देखेंगे कि कश्ती के नीचे एक जो है वो पीस लगे होते हैं, उसको जो है वो राल कहा जाता है मजबूती के लिए। और याद रखें कि 40 दिन और 40 रात क्या हुआ? क्या हुआ? बारिश हुई। खुदा का कलाम फरमाता है कि जमीन ने क्या किया? अपने सौदे खोल दिए, आसमान ने खिड़कियां खोल दी और लिखा गया है कि जितने टीले थे, जितने पहाड़ थे, सब पानी के अंदर डूब गए। क्या हुआ? सब पानी के अंदर डूब गए। एक जानवर, एक हैवान, एक कुछ भी जो रेंगने वाला जानवर है, फिरता है, वो भी ना बचा सिवाय जो कश्ती में मौजूद थे, जो कश्ती में मौजूद थे। और याद रख लें कि ये जो दरवाजा है ये जिंदगी का दरवाजा है। ये जो दरवाजा है जिंदगी का दरवाजा है। और याद रख लें ये जो दरवाजा है खुदा ने खुद बंद किया है। जब हम पैदाइश 7वें बाब की 17वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां लिखा गया है कि उसने उस खिड़की को क्या किया? बंद किया। उस दरवाजे को क्या किया? बंद किया। मेरा ईमान है और बाइबल बताती है कि खुदा इस कश्ती के साथ था, इस कश्ती में मौजूद था। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये ईमान रखता हूं कि हम जिस कश्ती में सवार हो चुके हैं, हम जिस दरवाजे में दाखिल हो चुके हैं, जिंदगी के दरवाजे में, यानी कि बेटे के वसीला से जिंदगी के दरवाजे में दाखिल हो चुके हैं। जिस तरह खुदा का बंदा नूह अपने साथ लोगों को और चिड़िंद परिंद को, हवानात को और रेंगने वाले जानवरों को बचाता है, मैं ईमान रखता हूं कि जो यीशु अल मसीह के साथ कश्ती में सवार होगा वो कभी भी डूबेगा नहीं, बल्कि हमेशा रहेगा, बल्कि जिंदगी पाएगा, जिंदगी के साथ की जिंदगी पाएगा जो कभी ना खत्म होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया।
जिंदगी के साथ एक खूबसूरत बात कहता जाऊं कि खुदा ने यहाँ अपने बंदा से वादा किया है, कहता कि मैं तेरे साथ अपना अहद बांधता हूं कि ऐसा को मैं किसी को पानी के साथ नहीं मारूंगा, नहीं दुनिया तबाह करूंगा, नहीं दुनिया को गुनाह करूंगा, ना किसी हैवान को, ना जानदार को, ना किसी इंसान को। खुदा ने नूह के साथ अहद बांध दिया, खुदा ने नूह के साथ अहद बांध दिया। जो सीखने वाली बात, जो समझने वाली बात है कि अब यहाँ कितने लोग मौजूद हैं? कितने लोग मौजूद हैं? 8 लोग मौजूद हैं और ये सब के सब कितने बाहर निकले? ये कितने बाहर निकले? 8 बाहर निकले, सॉरी, कितने निकले बाहर? 8 बाहर निकले। और बाइबल का जब हम मुतालिया करते हैं छठे बाब का, तो छठे बाब का जब हम मुतालिया करते हैं, ये लोग भी 8 बाहर निकले और जितने चरिंद परिंद हवानात रेंगने वाले जानवर इसमें मौजूद थे वो भी उसी कदार में बाहर निकले। हालेलुया। अब हर एक जानदार ने ये जाना कि खुदा का अमर हमारे साथ है। क्या जाना? खुदा का अमर हमारे साथ है। अब उनको पता था खुदा का हाथ हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ मौजूद है, खुदा हमारे हर वक्त साथ चल रहा है, खुदा हमारी कश्ती को कभी डावाडोल नहीं होने देगा। और उन्होंने ईमान रखा कि हम बच जाएंगे। और जब खुदा ने इस दरवाजे को, इस खिड़की को बंद किया, हम ईमान रखते हैं कि वो सब के सब बच गए, वो सब के सब बच गए, क्योंकि उन्होंने ईमान रखा। और मैं ईमान रखता हूं कि जब जो उस कश्ती में दाखिल होगा तो वो उन गुनहगारों को कहता होगा कि मेरे भाई इस कश्ती में दाखिल हो जाओ, मेरी बहन इस कश्ती में दाखिल हो जाओ, बच जाओ, क्योंकि खुदा तुमसे नाराज है, खुदा तुमसे बहुत परेशान है। खुदा नहीं चाहता कि तुम्हारी हलाकत हो, लेकिन तुम खुद चाहते हो कि हम गुनाह की दलदल में फंस जाएं। गुनाह का जो मजा है वो बड़ा खूबसूरत होता है। गुनाह का मजा जो है वो बड़ा खूबसूरत होता है। जब कोई इंसान रिश्वत लेता है ना, उसको लालच होता है कि मैं और रिश्वत दूं। क्या होता है? मैं और रिश्वत दूं। जब इंसान कोई 2 नंबर काम करता है, उसको चस्का पड़ जाता है, मजा आ जाता है कि मैं और 2 नंबर काम करूं, मैं और करप्शन करूं। ऐसे ही ना, इंसान की फितरत में ये शामिल है। ये फितरत जो है वो गुनाह हमसे करवाता है। क्या करवाता है? गुनाह हमसे करवाता है। और इंसान के अंदर जब गुनाह दाखिल हो जाता है तो याद रखें कि खुदा जो है वो गुनाह को नहीं देखता, खुदा बंदी को देखता है, आगे खुदा का कलाम फरमाता है ये जो कश्ती है सलामती की कश्ती है। कौन सी कश्ती है? सलामती की कश्ती है। और ये जो समंदर है, कौन सा समंदर है? अदन का समंदर। कौन सा समंदर है? अदन का समंदर है। एक और बात बताता चलो, नूह का मतलब किसी को पता है क्या है? नूह के नाम का मतलब क्या है? नूह का मतलब क्या है? तो जानते हैं? संडे स्कूल टीचर नहीं, एनीवन तो बता सकता है। नूह का मतलब है आराम। क्या मतलब है? आराम, रेस्ट। अब मतलब उसका है आराम करना, लेकिन खुदा उससे आराम वाला काम नहीं ले रहा। खुदा उससे आराम वाला काम नहीं ले रहा, बल्कि खुदा उससे इतना काम ले रहा है कि वो जंगल से लकड़ियां काट रहा है, बड़े बड़े जो है वो पिलर काट के ला रहा है, कश्ती बना रहा है। और उस जमाने में कील से कील नहीं होते, और कील जो है वो लकड़ी के बनाए जाते थे।
में कारपेंटर का काम सीखा हुआ, लकड़ी के कील बनाता और वो लकड़ी के कील उस कश्ती में ठोकता, कितनी मेहनत थी। अब उनके माँ बाप ने तो उनको आराम के लिए पैदा किया, उसका मतलब ही आराम है, लेकिन खुदा उससे बड़ा काम लेना चाहता है, खुदा उससे बड़ा काम लेना चाहता है। याद रखें कि हो सकता है खुदा आपसे भी बड़ा काम लेना चाहता है, खुदा आपसे भी बड़ा काम लेना चाहता है। खुदा चाहता हो कि कोई मेरी बेटी से और मेरी आवाज को सुने, किसको? मेरी आवाज को सुने कि मैं क्या कहता हूं। कोई बेटा जो है वो मेरी आवाज को सुने कि मैं क्या कहता हूं। कभी इस बात को आपने सुनने की कोशिश की है? हाथ खड़ा करें जो मैरिड है और जिनके नाम औलाद है, जो मैरिड है, जो शादीशुदा है और जिनके नाम औलाद है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। अगर आपका बेटा या बेटी आपसे पूछे कि आप मसीह हैं, यीशु अल मसीह के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो क्या आप रासबाज हैं? तो क्या आप रासबाज हैं? आपके पास क्या जवाब है? कोई आंसर दे सकता है? कोई जवाब दे सकता है? कोई माँ, कोई बाप? देखिए, फादर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, हमारा हक बनता है, हमें मनाना चाहिए। हमने औलाद पैदा किया है, खुदा ने हमें सैकड़ों औलाद दिया है, हम रास वाले हैं। क्या हम जानते हैं कि हम रासबाज हैं? क्या हम महसूस करते हैं कि हम रासबाज हैं? अब नूह के बच्चे जो है वो जानते हैं कि हमारा बाप जो है वो रासबाज है, हमारा बाप जो है वो रासबाज है। अब यीशु मसीह ने हमारे लिए गुब्बारा दिया है और हमें सबसे अलग कर लिया है, चुन लिया है, हमें बुला लिया है, हमें बुलावा दिया है। लेकिन इसका हर इस मतलब नहीं कि हम जो है सोते रहे और खुदा के कलाम को जो है वो ना सुने, खुदा के कलाम को ना कबूल करें। याद रख ले कि मैंने जो बात की है, हम अपना तरीका क्या कर लेते हैं? हम अपना तरीका क्या कर लेते हैं? सब कहिए बहनें, बेटियां, बेटे, भाई जो है, हम अपना तरीका क्या कर लेते हैं? बिगाड़ लेते हैं। आवाज करो, हम अपना तरीका क्या कर लेते हैं? बिगाड़ लेते हैं। अब आप लोगों ने बोला, हम लोग क्या कर सकते हैं? जोर से हम अपना तरीका जो है वो बिगाड़ लेते हैं। हम अपना तरीका इसलिए बिगाड़ लेते हैं कि हम खुदा को अहमियत नहीं देते, हम खुदा को अहमियत नहीं देते। और याद रख ले कि जो शख्स खुदा को अहमियत देता है, जो शख्स खुदा को अहमियत देता है, वो अपना तरीका कभी भी बिगाड़ता नहीं, वो अपना तरीका कभी भी बिगाड़ता नहीं, बल्कि वो चाहता है कि मैं खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करूं और खुदावन के नाम की बढ़ाई करूं और खुदावन के हुक्मों पर अमल करूं। अब हर बार हम कलीसिया के तौर पर चर्च में आते हैं, कलीसिया का मतलब ही चर्च है, इंग्लिश में हम चर्च कहते हैं, उर्दू में कलीसिया कहते हैं। हम यहाँ सब जमा होते हैं और हम कलाम सुनते हैं, हम कलाम सुनते हैं और सुनकर सुन हो जाते हैं, सुनकर सुन हो जाते हैं। मैंने आप सबसे इल्तमास की है कि जो भी संडे को आप कलाम सीखते हैं, क्या कोई भी बहन दूसरी बहन से कलाम शेयर करती है? शेयर करती है? कोई हाथ खड़ा कर सकता है? कोई भाई
शेयर करते हो? अच्छा, वेरी गुड, आपको बताऊं, याद रख लें कि अगर आपने कोई जुमला भी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इसका मतलब कि आप खुदा को क्या कर रहे हैं? खुश कर रहे हैं, क्योंकि जो कलाम आपने सुना है उस पर अमल कर रहे हैं। जो कलाम आपने सुना है उस पर क्या कर रहे हैं? अमल कर रहे हैं। खुदा के बंदा ने, नूह ने भी रास्तबाजी की जिंदगी गुजारी और खुदा के हुक्मों पर क्या किया? अमल किया। अगर वो नाव कश्ती बनाता तो क्या बह सकता था? क्या आप और हम यहाँ मौजूद हो सकते थे? हरगिज़ नहीं। इस बात की बाइबल शहादत फरमाती है कि उसने कलाम को सुना, उसने कलाम पर अमल किया और कलाम को पूरा होने दिया। और खुदा का कलाम फरमाता है कि उसके साथ 7 लोग बच गए। वो टोटल कितनी जाने थी? 8 लोग थी। और बाहर निकलकर सबसे पहले काम जो उसने क्या किया? कुर्बानी चढ़ाई और खुदा के लिए मसबा बनाया। क्या किया? खुदा के लिए मसबा बनाया, कुर्बानी चढ़ाई, खुदा को खुश किया। और लिखा गया है कि खुदा उस कुर्बानी से खुशबू लेता है, और वो खुशबू जो है जो खुदा की खुराक है और राहत अंगेज खुशबू लेता है, और खुदा जो है उससे सेर होता है। क्या होता है? सेर होता है। जो हम कुर्बानी चढ़ाते हैं, जो हम शुक्रगुजारी करते हैं, उससे खुदा जो है राहत अंगेज खुशबू निकलती है, और खुदा जो है वो खुश होता है। क्या होता है? खुश होता है। और नूह ने भी ऐसा ही किया। नूह ने भी ऐसा किया। उसने मसबा बनाया और बाहर निकलकर सबसे पहले ये काम किया कि उसने कुर्बानी चढ़ाई, खुदा को खुश किया, खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि इस रूहे ज़मीन पर तूने मुझे चुना, ताकि मैं इस रूहे ज़मीन पर बनी इंसान को बचाने का सबब बनूं, ताकि जब तेरा बेटा वक्त मुकद्दर पर आए तो वो भी आपका जवाब कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की तारीफ है। ये कलाम पूरा होना है, ये कलाम की बातें सुनना है, ये कलाम की बातों को पूरा करना है, ये खुदा की उस आवाज को सुनना है, ये खुदा के उस पैगाम को सुनना है, ये खुदा के उस कलाम को जो इल्हाम हुआ है उस पर ये पूरा करना है। और याद रखें कि जब हम कलाम को पूरा होने देते हैं तो फिर खुदा हमारे साथ है, फिर हमारे साथ होगा। जिस तरह नूह के साथ, किस तरह? जिस तरह नूह के साथ था, नूह की कश्ती के साथ था, उसने उसको ठेस तक नहीं पहुंच गए। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा गालबन 2000 में एक मूवी आई थी टाइटैनिक, और वो दुनिया का सबसे बड़ा जहाज एक इंसान ने बनाया, और समंदर का तूफान उठता है और उसको डुबो देता है। क्या कर देता है? डुबो देता है, गर्म कर देता है। क्या कर देता है? गर्म कर देता है। समुद्र का हल्का सा तूफान आता है। इसका हल्का सा तूफान आता है। यहाँ बारिश हो रही है, आसमान से खिड़कियां खुल गई हैं, जमीन ने अपने सौते खोल दिए हैं। यहाँ तो इंतहाई नहीं बारिश की, यहाँ तो इंतहाई नहीं पानी की, लेकिन क्या है? खुदा उनके साथ है, खुदा उनके साथ है, इसलिए वो बचे हैं। याद रख ले कि जब तक हम दुआ नहीं करते, खुदा की सुनते नहीं, खुदा को कबूल नहीं करते, खुदा की तरफ ध्यान नहीं लगाते, खुदा की तरफ समझ नहीं लगाते,
खुदा को अपना हकीकी निजात दहिंदा नहीं मानते, तब तक हम जो है खाली हैं, हम गर्क हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। हम क्या होंगे? मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हम मिट जाएंगे, हमारा नामो निशान नहीं होगा। फिर हम खुदावंद में सोएंगे नहीं, दूसरे लोगों की तरह हम क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, हम सोएंगे नहीं। यहाँ भी कलाम खुदा ने अभी वो वादा नहीं किया, लिखा गया है तब वो मर गया। कौन? मथुसेलह मर गया। और यहाँ नूह ने जो भी है वो वफात पाई। लेकिन जब हम बेटे के वसीला से नए अहकाम में दाखिल होते हैं तो लिखा गया है कि हम क्या होते हैं? यीशु मसीह के वसीला से सोते हैं। क्या होते हैं? सोते हैं। हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, हमारे पास जिंदगी का दरवाजा है। हमारे पास क्या है? जिंदगी का दरवाजा है। और उस दरवाजे में जब हम दाखिल हो जाते हैं तो कोशिश करें बाहर ना निकले, कोशिश करें बाहर ना निकले, कोशिश करें गुनाह आलूदा जिंदगी का बसर करें, जैसे कि यहाँ हुआ है, जैसे कि यहाँ हुआ है। अगर आपने अपने घर में मस्जिद बनाया, याद रखें, अगर आपने अपने घर में मस्जिद बनाया है तो उस मस्जिद को हरगिज़ जो है वो ना गुनाह आलूदा करें। उस मस्जिद को कभी भी गुनाह आलूदा ना करें, बल्कि कोशिश करें और समझे सोचे कि खुदा का पाकरू जो है यहाँ मौजूद है, खुदा का पाकरू यहाँ मौजूद है, जो वादों का सच्चा खुदा है, जो हमसे वादा करता है, जो हमसे इकरार करता है, जो हमें बचाता है, जो हमारी सिर पर है, जो हमारी ढाल है, जो हमारा मौके किला है, जो हमेशा की जिंदगी है, जो कुदरत वाला है, जो अब से लेकर अब हमेशा तक जो है वो हमारे साथ है। उसका वादा है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम उस दरवाजे में दाखिल हो तो मैं तुम्हारे साथ अब से लेकर हमेशा तक क्या हूँ? साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल तो नहीं हो रहे, जो बोल हो रहा है वो बता रहे हो। मेरे साथ एक हवाला निकल गया, दूसरा पत्रस उसका तीसरा बाब और 5 मिनट सही ऊपर बात के लिए हम जो इसका बात करें। हाँ जी, दूसरा पत्रस उसका तीसरा बाब उसकी 5वीं और 6वीं आयत का उतारे करेंगे। मैं पढ़ देता हूँ, ये निकालिए समय इब्रानियों में तक क्या है। अच्छा, लिखा गया है वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिया से आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन में से पानी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूबकर हलाक हुई। अब खुदा का बंदा पतरस जो है अपने खत में बड़ी खूबसूरत बात बता रहा है। पतरस के खत जब आप पढ़ते हैं, दोनों पहला और दूसरा छोटे छोटे बाब हैं, इसके 3 बाब हैं, और जब हम पतरस का पढ़ते हैं दूसरा खत उसके 5 बाब हैं। पहला खत तो उसमें भी जब हम मुताला करते हैं तो लिखा गया है एक खूबसूरत बात लिखी, बड़ी खेतों की बात लिखी है। पतरस ने बड़े खूबसूरत बयान की है। यहाँ भी वो कहता है वो तो जानबूझकर भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है। अब जितने लोग वहां मौजूद थे वो जानबूझकर भूल गए। क्या हुआ? वो जानबूझकर भूल गए कि खुदा का आसमान जिस पर वो तख्त नशीन है वो क्या है? मौजूद है। वो
अजीब से वहां मौजूद है। लिखा क्या है? तो उसका रूप पानियों पर क्या करता है? जुम्बिश करता है। क्या करता है? पानियों पर जुम्बिश करता है। खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा का कलाम जो है वो दो धारी तलवार और जब बदमन खुदे से गुजरता है अपना रास्ता बताता जाता है। खुदा जो है उसका रूप पानियों पर जुम्बिश करता है और पानी जो है वो नीचे बहता जाता है और जमीन ऊपर आती है। यहाँ भी इसी तरह लिखा गया है कि जमीन ने क्या कर दिया? अपने सौदे खोल दिए। खुदा ने अपना रूप जो है जमीन से उठा लिया, सौदे खोल दिए। अब याद रखते कि खुदा का वादा है कि मैं तुम्हें अनाज में रुज़ अनायत करता हूँ, पाखलू अनायत करता हूँ। और यहाँ भी वो यही बात कह रहा है पतरस कि आसमान कदीम से मौजूद है और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। अब जो पैदाइश की बात की गई है ना कि खुदा का रूह जो है पानियों पर जुम्बिश करता है। खुदा की ताबीर नहीं ला सका पानी और जमीन ऊपर आ गई, जमीन भर गई। हम खुदाई करते हैं तो नीचे से क्या निकलता है? पानी निकलता है। ये खुदा के जलाल के वसीला से। किसके वसीला से? खुदा के जलाल के वसीला से। जब उसने इस रूह जमीन पर उतरा, जमीन बनी। क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? जमीन बनी। क्या लिखा गया है? जमीन बनी। इन ही के जरिया से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हो गई। अब इनके जरिया से जिन्होंने गुनाह किए हैं, गुनाह की हालत में हैं, अब क्या हुआ है? वो डूब कर हलाक हो गए हैं। अब उनको पता नहीं कि हम जो है वो दुनिया को बर्बाद कर रहे हैं। दुनिया को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। और याद रखें कि आखिरी वक्त क्या होगा? खुदा ने दो तरीके से दुनिया का एहसास किया है और करेगा। अब जब खुदा एहसास करेगा, किस तरीके से करेगा? अब मुकाशवा 21 बाब उसकी 8वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो खुदा क्या कहता है हम जरूर सीखते हैं। लिखा गया है, मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खोरियों और हरामकारों और जादूगरों और झूठपरस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये क्या है? ये क्या है? किसमें जाएंगे? किसमें जाएंगे? आग और गंधक की झील में जाएंगे। कौन जाएंगे? जादूगर, जो बुज़दिल हैं। क्या है? जो बुज़दिल हैं, बेईमान हैं, जो घिनौने काम करते हैं, जो खूनी हैं, जो ज़ालिम हैं। ये वो काम है जिससे खुदा ना खुश है। आज भी वही काम हो रहा है। आज भी वही काम हो रहा है। मैंने जो बात कही थी कि खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ होता है। हमारे पास जितनी मर्जी महंगाई हो गई, हमें खुदा पर ईमान रखना चाहिए। किस पर? खुदा पर ईमान रखना चाहिए। मैं ईमान रखता हूं कि अगर भी 1 लाख रुपया भी हो जाएगा, जब हम खुदा पर ईमान रखें तो खुदा हमें मुहैया करेगा। खुदा हमें मुहैया करेगा। मैं बस इस बात पर ईमान रखता हूं क्योंकि उसका वादा है कि शेर बब्बर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब कभी भी भूखा नहीं रह सकता। ये उसका वादा है और उसका जो वादा है वो अटल है। वो समय में हम वही बात इस्तेमाल करते हैं कि लोगों के ऊपर यकीन है जो कभी नहीं।
हालेलुया। याद रखें कि हमें खुदा के साथ चलना है जिस तरह नूह चला है। नूह एक अच्छा बाप बना, नूह एक अच्छा ससुर बना, नूह एक अच्छा बेटा बना, नूह एक अच्छा खान बना। हालेलुया। ताकि जब हमारी औलाद कभी हमसे पूछे कि क्या मेरा बाप मेरी माँ रासबाज है, तो हमारे पास जवाब हो जी हाँ। क्या हो जवाब? जी हाँ। क्योंकि कलाम खुदा कहता है कि तुम अपने कामों से जाने जाओगे कि तुम मसीह हो। हालेलुया। आज से काम यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ बाप बेटा और रूह उसका ईमान रखना है और खुदा की जय। हालेलुया। आए हम अपने सर्व कुछ करें और खुदा की जय।